अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। उस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि रूस की तरह भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के दरमियान जो इस वक्त तनाजा है उसकी जनाब वजूहात क्या हैं, वो जनाब कहानी अब खुल गई है और अपनी जुबान से उसने खुद में इस बात को तस्लीम किया है कि वजह तनाजा क्या है। उसने 3 बुनियादी वजूहात बताई हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 36 के आंकड़े की। Ladies and gentlemen, good morning. Thank you so much for the kind words. I was Prime Minister, yes, 10 years ago. I was mayor of the most beautiful city in the world, Florence. So, yes, I was the youngest. I'm the youngest Prime Minister in the history of Italy. Now I think we have 2 points, very simple. Globalization is an opportunity, not a problem. That is the first message I have to underline. That is exactly the opposite of sovereignism around the world, and particularly the strategy of President Trump. Globalization helps us, is not our enemy, is not our problem. This is the first. The second point, Europe is in crisis. Because Europe is in crisis, Europe needs India, but I think also India needs Europe, exactly for the same reasons of the crisis of globalization. Trade war is the most stupid thing we can do, but now we are here. We are in the middle of the trade war. And what is the situation of Europe? That is the second point of my speech. Europe is in crisis for a lot of reasons. The first is the first problem. The second is bureaucracy. इस तरह की हालत हो गई हो खिस्यानी बिल्ली प्रोफेसर अंशु खंबा नोचे, ठीक है। और अब जहां जहां मन आता है वहां वहां गुस्सा निकालते हैं। भाई हिंदुस्तान ने उनका ऐसा क्या कर दिया इतना ज्यादा कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमसे ही आ रही है। हिंदुस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। देखिए इसमें पूरी के मिडिल ईस्ट देख ले, टर्की, यूएई, फिलीपाइंस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है। पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहां पे लोग आ रहे हैं। और we have to cut the mistakes of past. We had a bad approach on tariffs. We accept every single decision of President Trump. President Trump called European leaders in the White House. Okay, that is as a not maker, not a deal maker. America, I'm very good friend of the United States of America. I'm different when America from a nation who import energy, nation who export energy. We cannot accept. We became only a followers of the United States of America, not a continent leader. So we have to change and wake up Europe and try to have a different and more solid and more strategic relation between India and Europe. Yesterday we listened the speech of Minister of Trade of India. A lot of very interesting debate about the situation in India, also under the light of the relation with China, with Russia, and of course with the United States of America. I think we have to move the European leaders to understand India is not a normal partner. India is the most populous country in the world. India has a great tradition. India has an unbelievable level of technology. India is a country able to be the key partner in this strategic time. What means that? We have to create an institutional dialogue stronger than in the past. India and EU. I joke, let me conclude with a joke. Our Prime Minister, Giorgia Meloni, she's Prime Minister, have a very good relation with your Prime Minister. And in Italy we used to say melody. And I think that is very fun, and I joke with the Prime Minister Modi. I worked with him very strongly and very good 10 years ago when I became Prime Minister and he became Prime Minister at the same time. ये है आप लोगों की ताकत और ये है जलवा। कैसे बयान आया है, कैसे तरदीदें आई हैं, कैसे गहरी बात है, इस पर ज्यादा हुआ
जिसके बारे में ज्यादातर कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे। और हिंदुस्तान ने इन वर्षों में अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और 6.4% की ग्रोथ रेट के साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गए। हम यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश हैं, हमारे पास कौशल वाले यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे पास ग्लोबल साउथ का अब एक बहुत ही बड़ा समर्थन और सहयोग है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम ऊपर के पायदान पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर चढ़ते जा रहे हैं। पिनाज Was the century of the peace and the prosperity of Europe. So, chapeau, great achievement for Europe. But today we transform this political vision in a bureaucratic approach. We have too much stupid rules and not a clear vision for the future. Europe is not the center of the world as in the past. If you look geographic map, European people think Europe is in the middle. Then there is America, Asia, India, China, Africa, but in our mind, Europe is in the middle. Now, if you look at the numbers, that is not true, unfortunately. But what means? Please. बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये ऐसी समिट्स करते रहे हैं। माजी में आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले गुजरात के अंदर ऐसी समिट हुई थी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से और एक इन्वेस्टर्स को एनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री, इसको सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई एक बेहद अहम घटना की, जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत में आयोजित इस सम्मेलन में कई देशों के नेता, मंत्री और बड़े उद्योगपति शामिल हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने। मंच से दिए गए अपने बयान में उन्होंने पश्चिमी देशों की सोच और नीतियों पर तीखा सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अब वह द्वार नहीं रहा जब यूरोप या अमेरिका खुद को वैश्विक व्यापार और राजनीति का केंद्र मानते थे। आज भारत जैसे देश न केवल तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र नीति बना रहे हैं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो देश पहले सिर्फ तेल खरीदने के लिए पहचाना जाता था, आज वही देश दुनिया को तेल और ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला बन चुका है। यह बात पश्चिमी देशों के लिए पचाना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी दशकों पुरानी सोच अब धराशायी हो रही है। यूरोप की सोच पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद को विश्व का केंद्र मान लेना एक ऐतिहासिक गलती है और इस मानसिकता को अब बदलने का समय आ गया है। भारत के बढ़ते प्रभाव की चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूती से खड़ा है और यही कारण है कि एशियाई देशों की आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। इस तरह का बयान आने के बाद वेस्टर्न मीडिया में हलचल मच गई और कई जगह इस पर बहस छिड़ गई कि आखिर क्यों यूरोप और अमेरिका अब अपनी पकड़ ढीली होती देख रहे हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सहित कई अन्य नेताओं ने भी भारत की मेजबानी और उसके महत्व की प्रशंसा की और कहा कि भारत की भूमिका आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यह सम्मेलन सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और नए वैश्विक साझेदारी पर भी गंभीर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह मंचन उसकी बढ़ती ताकत और विश्वास को दर्शाता है और आने वाले वर्षों में भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश इस बदलते समीकरण को स्वीकार कर पाएंगे या फिर वे पुरानी सोच से ही चिपके रहेंगे? दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की यह नई भूमिका दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
क्योंकि हम आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण सबसे पहले पहुंचाते हैं।